Hello friends, I am Om Prakash Kumar. Welcome to you in biology class. Now the today topic is respiration in animals. In the last class we have already studied that respiration in plants. So respiration in plants and respiration in animals are completely different from each other. Respiration in animals, today the topic. In respiration in animals we are going to discuss about actually breathing in animals, how the organism intake the oxygens from air and how to remove the CO2 into the air from their body, and what are their respiratory organs, that respiratory organs which involves in the breathings. That means respiratory organs which involves in the exchange of oxygen and CO2. Oxygen and CO2 are called respiratory gases. Now come on the words. First, the respirations in amoeba. The respiration in amoeba takes place through the cell membranes. Cell membranes are plasma membranes. And you know that amoeba is a single cell organisms. So plasma membrane is the outer coverings and the body covering of the amoeba. Now the oxygens diffuse from air into the body because the high concentration of oxygen into the airs and low concentration of oxygens into their body, and that means in the cytoplasms. So the diffusion takes place from air outsides to the insides, and CO2 diffuses out from the cells into the airs. So respiratory organs in amoeba is cell membrane or plasma membranes. Now respiratory organ in earthworms. In earthworms the respiratory organ is the moist skins. वो moist skins के through वह respirations करता है. Now respiration in fish and prawn and mussels. Fish, prawn and mussels. Fish is categorized in the pieces classes, and prawn is an insect. Mussels is an mollusca. Now the fish, prawn and mussels, the respiratory organ is gills. That means the respiration occurs through the gills. So all these organisms survive in water because the respiration takes place through the gills, and gills only work in water, not in air. Now the next topic is respiration in humans. Humans make respirations. The respiratory organ in human is lungs. There are two lungs present in the chest cavity of humans. That human is the main respiratory organs in humans. Now respiratory organs is in human being is lungs. That means the breathing organs in human being is lungs. Now the human respiratory system, the respiratory organs in human is a single unit, so called a human respiratory systems. Human respiratory system. Now look at these figures. This is the human respiratory system, diagram of the human respiratory systems. This one is the nose, that one is the nasal passage. Now this one is the mouth, buccal cavity. Both buccal cavity and nasal passage, ये दोनों आकर के एक पॉइंट्स पे मिलता है. That point is called the pharynx. Now here the pharynx finally divided into two tubes.
one tubes called food pipes, and that food pipes go into the stomach, and the other tubes called trachea. Trachea, that is windpipe. Trachea is made up of ring of cartilage. Now trachea is called the windpipe. That trachea go into the chest cavity, and has tube-like structure in the trachea finally divided into further two tubes. That tubes is called bronchi, and bronchi finally go into the both lungs, and bronchi finally divided into many tubes, more than 1,000 tubules. That tubules called bronchioles. और ये जो ब्रोंकियोल्स है या ब्रोंकियोल्स या लंग्स में प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स में प्रेजेंट होता है. तो दिस इज ब्रोंकी, दिस बोथ ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी, एंड ब्रोंकी इंटर इनटू द लंग्स एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी ट्यूबुल्स. दैट ट्यूबुल्स कॉल्ड bronchioles, and bronchioles finally into a pouch like, a sac like structures. That structure is called alveoli. So alveoli present in lungs, both lungs. This was the lungs and also this is the lungs. Now in the lungs, more than 1 million alveoli are present in one lungs, and alveoli increase the surface area of lungs for exchange of gases. So alveoli, and both lungs are situated on a muscular structure called diaphragm. So diaphragms provide the support to the lungs, and here the heart is present in the left sides of human bodies, left nearer to the left lungs. तो डायफ्रागम्स यह हमारे ऊपर वाली चेस्ट कैविटी और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाली कैविटी, दोनों को वह सेपरेट करता है. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी जो चेस्ट कैविटी में लंग्स और हार्ट हैं वह दोनों सेपरेट रहते हैं, और सेपरेशन का काम है यह डायफ्रागम के द्वारा. डायफ्रागम नीचे से सपोर्ट करता है लंग्स को. लंग्स के चारों तरफ यहाँ पर हमारे यह चेस्ट कैविटी है. चेस्ट कैविटी रिब्स से बनी रहती है. यह रिब्स होती है अप्रॉक्स 12 पेयर्स रिब्स होते हैं जो आगे से लेकर पीछे तक यह कवर की हुई रहती है. और यह रिब्स एक रिब्स दूसरे रिब्स से एक मसल्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है. दैट मसल्स इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स जो है वह रिब के मूवमेंट में मदद करता है. तो यह रिब जो है और इंटरकोस्टल मसल्स या आपस में मिल करके रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं. रिब केज दैट मीन्स पिंजरा. रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं, और उस रिब केज के अंदर हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है. लंग्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग रहती है, लेयर्स रहती है. दैट लेयर्स इज कॉल्ड प्लूरा, PLEURA, प्लूरा. उसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो हमारे लंग्स को यह प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को या इन्फेक्शन से बचाता है. प्लूरा तो यह रिब के केस हुई. अब आते हैं ब्रीथिंग्स. Breathings can be divided into two parts, inhalation and exhalation. Inhalation that means breathe in, सांस लेना. Exhalation that means breathe out, सांस छोड़ना. Inhalations से पहले इस डायग्राम को कंसंट्रेट करते हैं. Now this both are the lungs in the chest cavity, and the ribs completely cover our lungs from outside, from आउटवर्ड डोर्सली एंड वेंट्रली, आगे से भी और पीछे से भी. यह रिब जो होता है
वह हमारे लंग्स को कवर किए रहता है और नीचे से सपोर्ट देता है डायफ्रागम। और यह रिब्स जो आगे और पीछे दोनों से, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से लंग्स को जो कवर किए हुए हैं, यह रिब केज बनाता है। रिब केज एंड डायफ्रागम्स बोथ आर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग्स। ब्रीथिंग्स क्या है? ब्रीथिंग्स, वन कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड वन ब्रीथिंग्स। एंड now rib cage and diaphragm both are helping in inhalation and exhalations। ब्रीथिंग में यह दोनों मदद करता है। तो ये रिब केज इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है? रिब केज का मूवमेंट अपवर्ड एंड आउटवर्ड लगता है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेके देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे रिब केज का मूवमेंट अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ हो रहा है, और डायफ्रागम का मूवमेंट डाउनवर्ड, डायफ्रागम मूव्स टू द डाउनवर्ड। डायफ्रागम डाउनवर्ड मूव करता है और रिब केज का मूवमेंट अपवर्ड आउटवर्ड होता है। तो हमारे लंग्स के अंदर जो कैविटी है, यानी कि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाता है। और हमारे इन्वायरमेंट में प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम हो गई है। तो डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं कि हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ मूव होती है जब गैसेस या कोई भी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन करते हैं। तो इस केस में जब हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाती है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स के अंदर प्रेशर, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड एयर्स जो है वह इन्वायरमेंट से हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर यानी लंग्स में इंटर कर जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशंस। तो इनहेलेशन में क्या होता है? रिब केज का मूवमेंट अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बट द डायफ्रागम मूव्स डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट। दैट्स व्हाई द चेस्ट कैविटी become increase and the air pressure in the lungs become decrease, so that the air moves from outwards to the inward, that means from air to the lungs. These conditions in the inhalation, just opposite taken place in the exhalation. What happen in the exhalations? The rib cage moves, सांस छोड़ के देखिए, the rib cage moves inwards and downwards. The rib cage moves inward and downwards, but the diaphragm moves upwards. In that case, the chest cavity, the volume of chest cavity become decreased, and the air pressures in the lungs become high, increased. The air pressure in the lungs is increased. तो अंदर का प्रेशर, एयर का प्रेशर जो लंग्स के अंदर है वो इंक्रीज कर जाता है, बट आउट इन्वायरमेंट का जो एयर प्रेशर्स है वह कम है। हमारे अंदर लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। तो हमारे लंग्स से जो है ना एयर्स, इसमें CO2 भी इन्वॉल्व है, वह बाहर की तरफ मूव कर जाती है, रिमूव हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो व्हाट हैपन इन द एक्सहेलेशंस? द रिब केज मूव्स इनवर्ड्स and downwards, and the diaphragms moves upwards, that means diaphragm become curve. So due to that the chest cavity become decreased, and the volume of chest cavity become decreased, and the air pressure in the lungs become increased as compared to the outsides. So the airs move from lungs to the environment. Yes, so this is the exhalations. Now the breathing, the complete inhalation, one complete inhalation and one complete exhalation is called one breathing. And in 1 minute, how many times exhalation and inhalations both completed is called rate of breathing. So average rate of breathing in adult humans at rest is about 15 to 18 times per minute. That means 1 मिनट में ये आदमी एवरेजली
आराम से बैठा हुआ है, एडल्ट पर्सन है, तो वह 15 से 18 बार वह 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है. बट द रेट ऑफ ब्रीथिंग कैन बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज. The rate of breathing can be increased during exercise and vigorous work because our body needs more energy, and more energy requires aerobic respirations, and that aerobic respirations can be fulfilled by fast rate of breathing. So rate of breathing can be increased during exercise and vigorous work. Now जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ एयर से ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये सब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे लंग्स के अंदर इंटर करते हैं, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये सब बाहर में रिमूव होता है. लेकिन इसमें से और सब गैस को नेग्लेक्ट कर देना है, केवल ऑक्सीजन एंड CO2 पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड CO2 ही हमारे बॉडी में डिफ्यूज होता है. और जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रहता है, CO2 का अमाउंट कम रहता है. जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है. जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के अमाउंट 21%, CO2 के अमाउंट 0.03%, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय जो एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे बॉडी से जो एयर बाहर रिमूव होती है नोज के थ्रू, उस समय ऑक्सीजन का अमाउंट 16% एंड CO2 का अमाउंट 4% हो जाता है. तो अब यह प्रोसेस होती है, यानी कि ऑक्सीजन के अमाउंट और CO2 के अमाउंट में डिफरेंस क्यों आ गया, तो कि दूसरे किसी गैस के अमाउंट में डिफरेंस नहीं होती है. तो आखिर यहाँ एक्सचेंज होता कहाँ पर है कि डिफरेंस आ जाती है. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह ब्रोंकियोल्स है. जैसे यह जो है ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल्स डायरेक्टली इंटर कर गया लंग्स के एल्वियोली में. इस तरह से यह ब्रोंकियोल्स यह डायरेक्टेड एयर सैक, जिसको हम लोग एल्वियोलर सैक या एल्वियोली कहते हैं. ये एल्वियोली या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है. इस एल्वियोली की जो मेम्ब्रेन्स होती है वह सिंगल लेयर की इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई या मेम्ब्रेन्स होती है. इस एल्वियोली के चारों तरफ हमारे जो है ना ब्लड कैपिलरीज वह रन करते रहती है. ब्लड कैपिलरीज जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय इस एल्वियोली में जो है वह ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है. लेकिन हमारे ब्लड कैपिलरीज में जो है वह ये ब्लड कैपिलरीज जो हमारे पूरे बॉडी से ब्लड आई है हमारे लंग्स में, और लंग्स से वो एल्वियोली के चारों तरफ है, तो उसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वह रेस्पिरेशन हुआ है बॉडी में, सेलुलर रेस्पिरेशंस, तो उसमें ऑक्सीजन खर्च हुई है एंड CO2 प्रोड्यूस हुई है. CO2 इसलिए वो CO2 जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है. इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर कम होता है. यहाँ पे एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से इस एल्वियोली से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चला जाता है इस ब्लड कैपिलरीज में. ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट रहते हैं. यह हीमोग्लोबिन्स एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है. यह हीमोग्लोबिन्स उस ऑक्सीजन को वह कैप्चर कर लेता है. जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन को वह कैप्चर कर लेता है, और वहाँ से वो ब्लड मूव करते रहती है, और वो ब्लड चली जाती है हमारे हार्ट में. हार्ट से पूरे बॉडी में वह सर्कुलेट हो जाती है, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. तो
जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का कैरियर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुल्स। Hemoglobin also carry the CO2 molecules, but from tissue to the lungs. Now CO2 का प्रेशर इस ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा है एंड ऑक्सीजन का प्रेशर इस एल्वियोली में कम है। तो यहाँ से CO2 रिमूव कर जाती है और चली जाती है उस एल्वियोली में। क्यों? क्योंकि CO2 का प्रेशर इस ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा है एंड एल्वियोली में CO2 का प्रेशर कम है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो यह CO2 जो है वह CO2 इस एल्वियोली से यहाँ पे इस एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंक्स, फेरिंक्स से नसल पैसेज, फिर नोज से होकर के वह बाहर रिमूव हो जाती है। और जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो एयर मोलिकुल्स नोज के थ्रू नसल पैसेज, फेरिंक्स, फेरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन्स एंड CO2 का डिफ्यूजन्स लंग्स में वह एल्वियोली, एल्वियोलर सैक के पास होता है। इसलिए एल्वियोलर सैक की संख्या हमारे लंग्स में, एक लंग्स में मोर देन 1 मिलियन होती है, ताकि वह सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे। ताकि सरफेस एरिया जब इंक्रीज कर जाएगी तो डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा। फिर यह CO2 डिफ्यूज हो गई है, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से पूरे बॉडी में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। फिर हमारे टिश्यू सेल्स के पास जो ब्लड कैपिलरी जो ब्लड लेकर के पहुंचती है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन के अमाउंट ज़्यादा है। उस ब्लड कैपिलरी से जो ऑक्सीजन होती है जो हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी हो रही है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर डिफ्यूज कर जाती है हमारे सेल्स में। सेल्स में फिर रेस्पिरेशन होता है, CO2 प्रोड्यूस होती है और वह CO2 फिर डिफ्यूज कर जाती है सेल्स से, फिर ब्लड कैपिलरीज में उसे हीमोग्लोबिन उसे कैरी करके फिर हार्ट के पास लाता है, हार्ट से फिर लंग्स के पास जाती है, लंग्स के बाद फिर वही प्रोसेस होती है, एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस लंग्स में जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वह एल्वियोलर सैक्स में, चाहे एल्वियोली कहिए उसको, और दूसरा जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वह ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू के पास होती है। एल्वियोलर सैक्स में जो डिफ्यूजन होता है वह ब्लड कैपिलरीज से CO2 चली जाती है एल्वियोली में एंड ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड कैपिलरीज में। जस्ट इसका अपोजिट होता है सेल और ब्लड कैपिलरीज जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड सेल्स में एंड ब्लड सेल्स से CO2 डिफ्यूज हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। नाउ रेस्पिरेशन इन अमीबा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म थ्रू moist skin, respiration in fish, prawn and mussels through gills, respiration in humans beings is lungs, that means respiratory organs in human is lungs. This is the respiratory system. This one is the breathings, inhalation and exhalations, rate of breathings and exchange of gases takes place in the alveoli. So this is all about the respirations in animals. Now in the next class we will study about transport systems, transportations. This is the second part of the life process. So thank you for watching this video. Okay.